Now let us consider the turning of the vehicle by considering both friction and banking of road. इससे पहले हम लोग फ्रिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. हमें मालूम है कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन इट अपोजेस रिलेटिव मोशन. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फ्रिक्शन की, इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. फ्रिक्शन का फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. अगर एक सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इन राइटवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा टेंजेंशियली. अगर ये ब्लॉक, ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो फ्रिक्शन भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा. अगर ब्लॉक लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स अब टेंजेंशियली राइटवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ force of friction. It opposes relative motion and it is a self-adjusting force. Now let us consider a banked road surface. Suppose this is the vehicle of mass m. So its weight, it will act vertically downward. Normal reaction, it is normal to the surface. This is the angle of banking theta, and suppose this is the center of the circular path. The car is turning about this axis, so radius of the circular path, it will be equal to r. अगर कार की स्पीड कम होगी, हमें मालूम है वेलोसिटी कार की अंडर रूट ऑफ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर कार की स्पीड कम करोगे तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होगा, यानी कार में टेंडेंसी होगी टू स्लिप इनवर्ड, डाउनवर्ड या इनवर्ड स्लाइड होगी, स्लिप होगी. इसलिए फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों को हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में. सपोज इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का एडजेसेंट कंपोनेंट होगा, सो इट विल बी एन cos theta, and horizontal component it will be n sin theta. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. दिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा. एडजेसेंट कंपोनेंट है, सो इट विल बी एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा. Here n cos theta and f sin theta, these two forces are balancing weight of the vehicle, and the resultant of these two forces, that is n sin theta and f cos theta, the resultant of these two forces is providing the necessary centripetal force to the vehicle. So centripetal force, it is provided by n sin theta and f cos theta. F cos theta, its direction is opposite to that of n sin theta, so we have to write a negative sign with this component. So centripetal force, it will be equal to n sin theta plus f cos theta, and weight mg of the vehicle, it will be balanced by the resultant of these two forces which are in the same direction, that is n cos theta plus f sin theta. Centripetal force की वैल्यू mv square upon r, so mv square upon r, it will be equal to n sin theta
minus f cos theta centripetal force is mv square upon r. It will be equal to n sin theta minus f cos theta. इन दो इक्वेशंस का रेशो लेंगे. सो mv स्क्वायर अपॉन r divided by mg, it will be equal to n sin theta minus f cos theta upon n cos theta plus f sin theta. Factor m, it will be cancelled, so v square upon rg, it will be equal to, राइट हैंड साइड को हम डिवाइड करेंगे बाय n cos थीटा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस f sin थीटा अपॉन n cos theta. So we have to simplify the equation. This equation will become v square upon gr equal to, फैक्टर n कैंसल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट विल बी टेन थीटा. v स्क्वायर अपॉन जी आर इक्वल टू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल होगा, f अपॉन n डिवाइडेड बाय n cos theta, it will be cancelled, 1 plus f upon n into sin theta upon cos theta tan theta. Now let us write the value of f upon n. v square upon gr, it will be equal to tan theta minus f upon n. This ratio is equal to coefficient of static friction mu s. So v square upon gr, it will be equal to tan theta minus f upon n की वैल्यू mu s upon 1 plus again f upon n is equal to mu s into tan theta. फैक्टर जी आर को इस तरफ लेकर आएंगे, सो वी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू जी आर इंटू ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, और द मिनिमम वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 plus mu s tan theta. This is the minimum speed. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको व्हीकल या कार को रोकना पड़ता है, अचानक कार ख़राब हो जाए या कोई जानवर अचानक सामने आ जाए, देन यू हैव टू स्टॉप द कार, यानी मिनिमम स्पीड इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. प्रैक्टिकली मिनिमम स्पीड को ज़ीरो होना चाहिए. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्पीड इक्वल टू ज़ीरो, देन द इक्वेशन विल बिकम, if this side is equal to 0, the value of this bracket will be equal to 0, or tan theta minus mu s, it will be equal to 0. Tan theta minus mu s will be equal to 0, or tan theta should be equal to the coefficient of static friction
between the tires of the car and surface of the road. So for minimum speed we can say mu is, it should be either equal to tan theta or mu it should be greater than tan theta. और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है, यानी मिनिमम स्पीड के लिए tan थीटा इट शुड बी इक्वल टू 1 और एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कार की मिनिमम स्पीड ज़ीरो करने के लिए हमें रोड को बैंक करना होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री।